Hello, good morning students. Today we are going to start class 12th, day 1, subject English, book Vistas, chapter Journey to the End of the Earth, writer Ishani Doshi, objective to explore the literature and grow our vocabulary. Difficult words we are going to understand are uninterrupted means undisturbed, untouched. Immensity means extremely large. Amalgamated means combined to form organization or structure. Here perhaps we are going to read structure because this chapter is about journey to the end of the earth. It means we are going towards the end of the earth. This journey is to the Antarctica. Antarctica. Here the writer is going with his students on a journey that is towards the end of the earth, and this chapter is going to be very interesting. Perhaps you will think that we are studying SS, but what to do? The topic is end of the earth means voyage or journey towards the end of the earth. So we are going to start this chapter with lots of interest. We are going to read about Antarctica region, right? Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. Bon voyage. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, that is Antarctica. My journey began at 1309 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. Early this year, साल के शुरुआत में मैंने एक रिसर्च वेसल पढ़ा जिसमें कि दे रखा था किसके बारे में, अंटार्कटिका के बारे में। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कहाँ से, मद्रास से। उसकी डिग्रीज बता रखी हैं 13.09. यू ऑल मस्ट हैव रेड अप इन द ज्योग्राफी अबाउट द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. दैट डिग्री इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर. सो इट इज इक्वेटर मद्रास एंड इन्वॉल्व, और इसमें इन्वॉल्व हुए कितना क्या क्या 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन से, 6 चेक पॉइंट से, 3 बॉडीज ऑफ वाटर थी और बहुत सारे इकोस्फीयर्स थे. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica, expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. So पहली बार मैं अंटार्कटिक लैंडस्केप की तरफ बढ़ा जिसमें मैंने 100 आवर्स की जर्नी की, जिसमें कार से भी था, एरोप्लेन से भी और शिप से भी. और एक ऐसा इमोशन मेरे चेहरे पे पढ़ा जा सकता था कि मैं अंटार्कटिका एक्सपेंसिव की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसको अभी तक किसी ने कभी टच नहीं किया या जिसको अभी तक किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, छेड़ा नहीं है. और एक ब्लू हॉरिजॉन वाज रिलीफ, followed up by the immediate and profound wonder. Wonder at its immensity, it is isolation, but mainly at how they could ever have been a time when India and Antarctica were the part of same landmass. Wonder किस चीज़ का था कि आज की डेट में immensely ये बहुत लार्ज स्केल पे वाइट लैंडस्केप फैला हुआ है, जबकि किसी समय में ये एक ही लैंडस्केप का हिस्सा थे. कुछ ज्योग्राफी जैसा लग रहा है. Yes, I know, because all these things were discussed in geography. Part of history. 650 million years ago. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana. I hope in 9th class in your SS geography, you all have read about Gondwana. Did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene.
and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. उस समय में थिंग्स यानी कि उस समय में चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। किसके बारे में? गोंदवाना लैंड के बारे में। अगेन आई एम टेलिंग यू, गोंदवाना लैंड वाज अ पेंजिया। पेंजिया मीन्स उस समय एक ही लैंड मास था सारे अर्थ के ऊपर। द होल अर्थ हैव ओनली वन लैंड मास एंड देयर वर नो वाटर एट ऑल। सो इन दोज डेज only dinosaurs were existing, and when dinosaurs wiped out, when mammals entered on the global phase, जब mammals हुए apes, then early man and the other stages you have read about in your essays. So they wiped out and the age of mammals got underway. The land mass, उस समय में land mass ने separate होना शुरू कर दिया, जो कि continents और seas में, oceans में divide होना शुरू हो गया था। कब? 5 मिलियन ईयर्स होने के बाद। और ये जो हमने बात बताई है कब की बताई है? 650 मिलियन ईयर्स। 650 मिलियन ईयर्स अगो इट वाज अ सिंगल लैंडस्केप। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम द एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। अब अंटार्कटिका का जानने का जो एक मकसद था, उसकी हिस्ट्री के साथ वो ये था कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें नहीं पता हम कहाँ पहुंचेंगे। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलर फोल्ड्स एंड प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन प्रीटी माइंड-बॉगलिंग इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and the bottom of the world. अब अंटार्कटिका के लिए जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ तक जाएंगे और कहाँ से हमने शुरू किया था। बट मुझे ये पता था कि हम हिस्ट्री में जा रहे हैं, हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, कैसे ओजोन लेयर बनी, कार्बन डाइऑक्साइड आई और कैसे उसका यूज होना शुरू हुआ। और जब हम ये सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा तो एक सेकंड लगता है सोचने में, बट इट हैपन्स इन मिलियन ईयर्स। हजारों लाखों साल लगे इस ग्लोब को ऐसा देखने के लिए जैसा कि हम आज की डेट में देखते हैं। यानी कि हमारे पास ओशंस हैं और हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इस टाइम में इंडिया नॉर्थवर्ड में जाना शुरू हो चुका था, जबकि किसके साथ स्क्वीज हो रहा था? एशिया में स्क्वीज हो रहा था। और इसके जो बकल्स थे वो हिमालय से टाई अप होके अपनी एक हिमालय रेंजेस बना रहे थे। इन द सेम टाइम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ड्रेक पैसेज क्रिएट हो रहा था, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड। और एक सर्कमपोलर करंट बन रहा था जिसमें अंटार्कटिका को फ्रिजिड जोन में डाला गया और ये डिसोलेट हो गया और ये बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में आ गया। ये सब कहाँ से हुआ बेटा? टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी हेल्प करती हैं नीचे सतह से। दे आर ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन एज यू हैव ऑल रेड अबाउट इन योर जियोग्राफी। मैं बार बार ज्योग्राफी बोल रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपको जियोग्राफिकल टर्म्स आती होंगी तो ये जल्दी समझ आ जाएगा। फॉर अ सन worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for the circulatory and metabolic functions but also for the imagination. It is like walking onto a giant ping pong ball devoid of any human makers, no trees, billboards, buildings. कह रहे हैं एक ऐसा इंसान जो कि डेली सन की पूजा करता है, मेरे जैसे इंसान 2 हफ्ते पहले 90% ऑफ द अर्थ की आइस जहाँ पे हो वहाँ के लिए चल रहा है, वहाँ जा रहा है, जहाँ पे जो चिलिंग है, जो फीलिंग आ रही है उसके अंदर, जो कि सिर्फ मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए वो बर्फ काम नहीं करती
पोटैटो फॉर इमेजिनेशन, उसको वो इमेजिन भी कर सकते हो उस चिलिंगनेस को। किस चिलिंगनेस को? वो अंटार्कटिका में जा रहा है, वहां इतनी सारी बर्फ है, इतनी सारी कितनी, 90% आइस ऑफ द अर्थ। इट इज लाइक वॉकिंग इनटू ए, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जायंट पिंग पोंग बॉल के ऊपर चल रहा है, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ आकर आपको पृथ्वी की सभी अदर सेंसेस से और टाइम से एक फ्रीडम मिलती है, यहाँ टाइम नहीं है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. Days go on and go on in serial 24 hours, austral summer light and ubiquitous silence. कह रहे जहाँ पे वो रह रहा है, कहाँ, अंटार्कटिका में, वहाँ पे कोई रेंजेस नहीं है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि वो 24 घंटे के हिसाब से समर लाइट है और यूबिक्विटस साइलेंस, चारों तरफ एक सन्नाटा फैला है, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच और कैल्विंग आइस शीट्स। वो सिर्फ एवलेंच, जो बर्फ का तूफान होता है उसको बोलते हैं एवलेंच, या कैल्विंग आइस शीट्स कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई और आवाज नहीं है सिवाय एवलेंच के या बर्फों की शीट्स के टूटने के सिवाय। It is an immersion that you will force you to the place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis is not good. आप इस जगह पर जाकर अपने आप को पाएंगे कहाँ? अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स के लिए मेडिकल सर्विसेज नाम की कोई चीज नहीं थी। बेटा, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर अप टू ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट से आगे हम डे 2 के लेक्चर में करेंगे। यू प्लीज ट्राई टू रीड दिस चैप्टर एट होम, ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, एंड इफ यू यूज दीज वर्ड्स इनटू योर डेली कन्वर्सेशनल लाइन्स, दैट विल बी बेटर टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। थैंक यू।